Now, speech in English by a student of our school, Shushmita Gaun from 10B. Honorable Chief Guest, respected Secretary Sir, Principal Sir, teachers and all my dear friends. Let me welcome you all to the 75th Independence Day celebration on behalf of Edwards English School. On this auspicious day, 75 years before we attained freedom from British Raj, on 14th of August 1947, at midnight hour, Pandit Jawaharlal Nehru gave a speech in Delhi. He started his speech with, "When the world sleeps, India will wake to freedom and life." Further, he added, "Freedom and power brings responsibility." He said that we have to labor and to work hard, to give reality to our dreams. The road to freedom was not very easy. When it comes to independence, our thought first turned to Mahatma Gandhi, the man behind our struggle for freedom. Gandhiji was seeking liberty from both the foreign rules and the indigenous social chains. Our freedom fighters like Netaji Subhash Chandra Bose, Chandrasekhar Azad, Prafulla Chaki, Lala Lajpat Rai, Bhagat Singh, Rash Bihari Bose, Bipin Chandrapal, and many others are named unsung heroes who fought with their lives to attain freedom. It is because of these fighters and Jawans that we are breathing in an independent nation. So, on this occasion, let me pay my glowing tributes to the firebrand patriot, without whose earnest effort, India's freedom would remain a distinct dream. Great freedom fighter Netaji Subhash Chandra Bose regarded our nation as a tree, of which the original trunk is Swaraj and the branches are Swadeshi and boycott. Nowadays, India is the means of equality. Women are having equal opportunity in every field and are standing shoulder to shoulder with man. India is coming up with glowing colors, as a few days back in Olympics, India showed its ability and won a lot of medals. But still, India is facing a lot of difficulties, like killing of innocent people by the terrorists has become a regular matter. Disruptive and the vociferous tendencies are cropping up their ugly heads to tear as under the very fabric of our unity and integrity. Religious fanaticism is dividing the base of our unity. But we, the brave sons and daughters of Mother India, will not allow any other power to divide our country. Just as eyelid protect the eyes from any danger, we are also ready to safeguard our country. We will shed our blood to protect our unity. We are ready to accept any challenge regarding our unity. India is the cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legends, and the great-grandmother of tradition. So, let's stand together and fight for India. Jai Hind, Vande Mataram. To salute the sacrifices of our freedom fighters and honor the glory of our motherland, now we will have a classical dance performance.
प्रधानाध्यापक महोदय, सचिव महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, शिक्षक एवं शिक्षिकागण तथा स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर उपस्थित सभी सज्जनों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है। हर वर्ष हम इस त्योहार को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि इस वक्त पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इसी कारण हम यह पावन त्योहार पूरे हर्ष और उल्लास के साथ विद्यालय परिसर में नहीं मना पा रहे। ना हमारे मित्र, ना ही हमारे बड़े बुजुर्ग आज हमारे बीच विगत वर्षों की तरह शामिल हो पाए हैं। इस दिन को पाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का सर्वस्व बलिदान कर दिया। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे देश के बहुत सारे क्रांतिकारियों ने कारावास एवं काला पानी तक की सजा काटी है। आज हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, यह हमारे देश के क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों की ही देन है। जब हम विदेशियों के अधीन थे तब हम पर तरह तरह के अत्याचार होते थे, हमें यातनाएं दी जाती थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड और सत्याग्रह करने वालों पर लाठी बरसाने जैसी घटनाओं को हम कैसे भूल सकते हैं। हमारे पूर्वजों की दी हुई कुर्बानी और हमारे सैनिकों के बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। हमारे देश का भविष्य हम युवाओं पर निर्भर है। हम युवा इस देश की 60% आबादी बनाते हैं और अगर हम पूरे जोश के साथ राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए तो हमें निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी और हम अपने देश को विश्व गुरु बनता हुआ देख सकेंगे। भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाना सिर्फ हमारा ही सपना नहीं, बल्कि हमारे पुरखों का भी सपना है। हमारे पुरखों ने यातनाएं सहकर और जेल की सलाखों में पहुंचकर भारतवर्ष को आज़ाद कराया, हमें गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाई और हमें अपने देश की आत्मा के अनुकूल जीने का हक दिया। क्या हम उनके सपनों को साकार करते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना सहयोग प्रदान नहीं करेंगे? अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम उन क्रांतिकारियों के सपूत नहीं जिन्होंने दिन रात एक कर हमें विदेशियों से मुक्ति दिलाई। मैं अपने देशवासियों से ये कहना चाहती हूँ कि इस भूल भुलैया में ना रहे कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। अगर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को याद करें तो हमें पता चल जाएगा कि हम पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हैं। पूर्ण आज़ादी के लिए रावी के तट पर जो प्रतिज्ञा ली गई थी उसे प्राप्त करने में हम अभी तक असफल हैं। उन्होंने कहा था, 15 अगस्त का दिन कहता है आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ ना पूरी है, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे, बलिदान करे, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करे। एक बार फिर आप सभी स्वतंत्रता सेनानियों को हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहती हूँ और स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर राष्ट्र हित के लिए हमेशा तैयार रहने का वचन देकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत। It is said that dance is the hidden language of soul. And now it's time for a dance performance. भारतीय सांस्कृतिक नृत्य एक कहानी बताने का माध्यम है जिसे समझने की ज़रूरत है। ये वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वह माध्यम है जिससे लोगों को हमारी संस्कृति के बारे में पता चलता है। अब हमारे स्कूल के बच्चे आपके समक्ष भारतीय सांस्कृतिक नृत्य प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ফাগুনেরো মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। ফাগুনেরো মোহনায় ফাগুনেরো
उपस्थित लोगों को सुप्रभात। वेलकम टू टुडेज इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम, द 75th इंडिपेंडेंस डे। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड वेल विशर्स, प्रिय विद्यार्थीगण, अध्यापकगण और सभी शुभचिंतक, दिस इज अ ग्लोरियस वीक। यह हमारे लिए महिमामय एक दिवस है। द वीकेंड विल बी फिल्ड विथ वेरियस ऑब्जर्वेंसेस। हो सकता है कि हमारा सप्ताहांत अनेक प्रकार के खूबसूरत माहौल से भरा हुआ इवेंट्स एंड festivals around the 75th Independence Day of India, और घटनाएं और कार्यक्रमों से जो कि 75वां स्वतंत्रता दिवस को हमें स्मरण दिलाए। इट इज़ अ ग्रेट कॉज टू सेलिब्रेट। ये इसे उत्सव के रूप में बनाने का हमारे लिए बहुत ही प्रमुख कारण है। Yet along with that is also an occasion to reflect, और साथ ही साथ ये एक अवसर है जिसमें हम अपने भावनाओं का प्रतिक्रिया कर सकते हैं। अपॉन द मीनिंग ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता दिवस के उस अर्थ को समझाने के लिए, एंड व्हाई बीइंग वाइज इज मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग इंडिपेंडेंट, और इस बात को समझने के लिए कि स्वतंत्र एक व्यक्ति होने के बजाय बुद्धिमान हम कैसे और ज्यादा हो सकते हैं। लुक डीपली एंड यू विल फाइंड दैट इंडिपेंडेंस एंड विजडम आर इंसेपरेबल। अगर आप गहराई से देखेंगे तो स्वतंत्रता और बुद्धि, ये दोनों, इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। इफ यू इंटेंड टू कंप्लीटली एंजॉय योर फ्रीडम, अगर आप आजादी को पूरे दिल से मनाना चाहते हैं, यू हैव टू बी वाइज। आपको बुद्धिमान होना होगा। As a responsible citizen, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, every independent Indian must realize, हर एक स्वतंत्र भारतीयों को इस बात का एहसास करना होगा, the difference between moral and immoral activities, कि नैतिक और अनैतिक कार्यों के बीच में क्या भेद है, and should never disturb the peace of the country, और किसी भी रीति से भारत देश के शांति को, मधुरता को भंग न करें। Sometimes people take advantage of this right. कभी कभी ऐसा होता है कि लोग इस अधिकार का नाजायज फायदा उठाते हैं, and display reckless conduct in the name of freedom. और स्वतंत्रता के नाम पर वे क्रूरता को दर्शाते हैं, thus causing disturbance to civic life which is not right. और फिर इस प्रकार से वे समाज में अभद्रता का प्रदर्शन करते हैं। As children, to all the children around here, बच्चे जो हमारे आसपास खड़े हैं उनके लिए, you also like to be independent at times. आप भी अपने जीवन में स्वतंत्र होने की इच्छा रखते हो। Well, independent is important because, अब सही बात है, स्वतंत्रता अच्छी है क्योंकि number one, पहला कारण, it promotes confidence and self-esteem. ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है, as well as motivation, perseverance in school. और फिर विद्यालय में रहते हुए आपका उत्साहवर्धन और आपको धीरज प्रदान करती है। It fosters, second, दूसरा, it fosters self-reliance, और वे आत्मनिर्भरता को भी प्रदान करती है, allowing you to feel that you have control over your life. इस बात का एहसास दिलाती है कि आपके जीवन पर पूर्ण नियंत्रण है। Thirdly, तीसरा, if you give a sense of importance and belonging, अगर आप महत्व देते हो, which is essential for building social relationships, जो सामाजिक रिश्तों का बुनियाद है, and for contributing to the world, और संसार या फिर विश्व के लिए जो योगदान है। But don't overdo your part. लेकिन आप अपने
इस जिम्मेदारी को, अपने इस कर्तव्य को नजरअंदाज ना करें। इन द लाइट ऑफ दिस ट्रूथ, दिस हार्ड ट्रूथ, इस कड़वे और इस कठोर सत्य के प्रकाश में, दैट इंडिपेंडेंस एंड विजडम आर इंसेपरेबल, कि बुद्धिमानी और आजादी, इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। वी नीड्स गॉड्स गाइडेंस, हमें परमेश्वर के अगुवाई की आवश्यकता है, टू हेल्प अस टू एक्ट अबव पैशन, और अपने धीरज को प्रदर्शित करने के लिए हमें उसकी सहायता की आवश्यकता है। एंड सेल्फ सेंटर्ड डिजायर्स, और आत्मसम्मान के साथ भरा हुआ एक आजादी। इंडिपेंडेंस एंड विजडम अलाउ पीपल टू सी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थिंग्स, आजाद एंड एक्ट वाइजली। आजादी और स्वतंत्रता, आजादी और बुद्धिमानी चीजों को सही क्रम में देखकर उसके अनुसार कार्य करने के लिए हमें मदद करती है। एज एन इंडिपेंडेंट इंडियन, एक स्वतंत्र भारतीय होने के नाते, एवरी वन ऑफ अस मस्ट ग्रो इन फ्रीडम। हम सभी को इस स्वतंत्रता में, इस आजादी में बढ़ते जाना है। एंड सेफगार्ड इट एट ऑल कॉस्ट, और हमें इसका संरक्षण, इसको हर कीमत पर इसे सुरक्षित रखनी है। Which also involves choosing the right path, जिसमें सही रास्ते का चुनाव भी शामिल है। The chosen path must be good for your own self and for everyone. और जो चुनाव आपने किया है वो सबसे पहले आपके लिए और उसके बाद सभी के लिए अच्छी होनी चाहिए। Morality and wisdom are not less than gifts from God. नैतिकता और बुद्धिमानी ये परमेश्वर की ओर से दिया गया वरदान है। They help us to strengthen your character. ये हमें हमारे चरित्र का निर्माण में मदद करती है। They prepare your hearts for inculcating virtues. और हमारे अंदर सद्भाव और अच्छे गुणों को उत्पन्न करने में मददगार है। Keep you in the path of happiness. और आपको खुशियों के मार्ग पर अग्रसर करवाती है। Peace and prosperity. और शांति और संपन्नता के मार्ग में भी। So always choose wisdom. अतः हम सबको हमेशा भलाई को ही चुनना है। Your wisdom packs you with virtues of faith. आपका बुद्धि आपको हर प्रकार के विश्वास और सद्भावनाओं से भर देता है। Hope, उम्मीद, patience, धीरज, compassion, दया, self-control, आत्मसंयम and kindness, और भलाई। Inculcate these virtues firmly. इन सद्भावनाओं को, इन सद्गुणों को अपने जीवन में हम उत्पन्न करें। To enjoy your independence. ताकि आप अपने स्वतंत्रता को पूरी रीति से उद्घोष कर सको। In all senses. सभी प्रकार से। Keep this in mind. इस बात को ध्यान में रखें। That your wisdom will open the gates of fresh opportunities. आपका बुद्धिमानी से किया गया काम आपके लिए भविष्य में और कई अवसरों को उत्पन्न कर सकता है। In this beautiful and independent country. और तक इस खूबसूरत स्वतंत्र देश में। Heartfelt wishes for a happy 75th Independence Day. 75वां स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। Finally, अंत में a word of thanks to all of you. आप सभी लोगों को दिल की गहराई से शुक्रिया। For making an effort for being present on this auspicious day. इस पावन दिवस पर यहाँ पर अपनी उपस्थिति को प्रदान करने के लिए। Not forgetting the workers. उन व्यक्तियों को जिन्होंने यहाँ काम किया है उन्हें हम भूलना नहीं चाहते हैं। All the labor they put in. और जितना भी मेहनत उन्होंने यहाँ किया है to decorate the place, इस जगह को सजाने के लिए and having everything ready for the day, और इस दिवस के लिए सब कार्य को तैयार करने के लिए। God bless you and God bless everyone. परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जय हिंद। जय हिंद।